جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ تم جنت نہ مانگو، بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں کہ گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ جو اللہ سے رو رو کر مانگتے ہیں انہیں مانگنے کے بعد رونے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے؟ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ سجدے لمبے کیجئے، مشکلیں چھوٹی ہو جائیں گی۔ ظالم کے ظلم سے نہیں
बल्कि साबिर के सब्र से डरो, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान मांगती है, कभी ज़र्फ का, कभी नफ्स का और कभी सब्र का। मोहब्बत इंसान को रब तक ले जाती है, मिल जाए तब भी, ना मिले तब भी। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वालों पर गुस्सा आता है। रिज़्क और मौत का खौफ ना रखो, ये अल्लाह का इख्तियार है। ना कोई रिज़्क छीन सकता है, ना मौत दे सकता है, सिवाय अल्लाह पाक के। जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई चाहता है तो उसको अपने नफ्स के ऐब दिखा देता है। किसी का सुकून छीन लेने का कफ़ारा इबादत करके अदा नहीं किया जा सकता। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जिसे रब जवाब देता है तो लाजवाब कर देता है। किसी के वक़्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक़्त होता है जो चेहरे याद रखता है। लोग तुम्हें बेइज्जत करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। लोग तुम्हें बेइज्जत करने की लाख कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। किसी भी चीज के खत्म होने से जिंदगी खत्म नहीं होती। हर बार किसी चीज के खत्म होने पर अल्लाह से शिकवा करने की बजाय उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमसे सिर्फ एक चीज वापस ली, सब कुछ वापस नहीं लिया। जिनसे ताल्लुक रखना हो उनसे बहस नहीं की जाती, और जिनसे ताल्लुक ना रखना हो उनसे बहस का कोई फायदा नहीं होता। मेरी मुश्किलों से कह दो, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह वाले अना वाले नहीं होते, और अना वाले अल्लाह वाले नहीं होते। कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। कुछ चीजें, कुछ बातें और कुछ राज सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह से इंसान का करीब तरीन रिश्ता आंसू का है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं, तो उस अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब जानता है, लेकिन वो आपसे सुनना चाहता है। अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता, बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। हर टूटी हुई उम्मीद मुझे मेरे अल्लाह से जोड़ती है। मैं अपना हर गम अल्लाह को बताता हूँ, क्योंकि मेरे गमों का इलाज सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। हमें सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त होती है जब अल्लाह हमें किसी का असली रंग दिखाता है और हम बार बार हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह पाक की मदद को अपने साथ पाओगे। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि उसके अलावा कोई भी उसकी जरूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह ताला भी अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाता। जब अल्लाह किसी बंदे से खुश होता है तो उसके लिए नेकी करना आसान और गुनाह करना मुश्किल बना देता है। लोगों से डरना छोड़ दो, क्योंकि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान पाक की
तिलावत से बुझती हो। अल्लाह से अल्लाह के वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है, ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वो दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफरत होती है और ना ही मोहब्बत रहती है। तमाम तारीफें उस जात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर भी तोड़ नहीं सकते। जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। तबाही और बर्बादी है हर उस शख्स के लिए जो दूसरों के ऐब ढूंढते और लोगों की पीठ पीछे बुराई करते हैं। मुझे कुदरत के एक अमल से बहुत प्यार है, मकाफाते अमल। सकून सा आ जाता है ये लफ्ज़ सुनकर कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कायनात में कोई इतनी शिद्दत से किसी का इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत डाल लो, क्योंकि अल्लाह शुक्रगुजारों से बड़ी मोहब्बत करता है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा अपने मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक ये मुश्किल काम है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह की नाराजगी से डरते हैं। अल्लाह की मदद साथ हो तो आग की क्या मजाल कि आपका कुछ बिगाड़ सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों से ये भी सीखा है। सूरा यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले लोग खूबसूरत इख्तिताम पाएंगे। बुरे वक्त में बंदे का सबसे बड़ा मददगार अल्लाह होता है। मुश्किलात जब आती हैं तो इंसान को बज़ाहिर रास्ते बंद नजर आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से उम्मीद और तवक्कल का दामन हाथ से ना छोड़ें तो वो ऐसे ही रास्ते खोल देता है। अल्लाह जहां से चाहे नसीब पलट दे, उसकी कुदरत तुम्हारी समझ से बाहर है। बड़ी ताकत रखी होती है अल्लाह ने टूटे हुए दिलों में, और उन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है कि उनके दिल रेजा रेजा होकर भी अल्लाह से मांगते हैं। जिस इंसान की जुबान पर हमेशा शुक्र रहता है, अल्लाह पाक उस इंसान को कभी मायूस नहीं करते। और कुछ दरवाजे अल्लाह करीम हमारी हिफाजत के लिए बंद करते हैं, क्योंकि वो रास्ते हमारे लिए बेहतर नहीं होते। बेशक इंसान को अल्लाह तब याद आता है जब वो दर्द का मारा हो, गर्ज का मारा हो, या फिर मर्ज का मारा हो। जिंदगी के हर मोड़ पर जहां इम्तिहान होते हैं, वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। रब्बुल आलमीन का डर रखने वाले कभी किसी पे जुल्म नहीं करते, कभी ताने नहीं देते, कभी हकूक गजब नहीं करते। खुद को देखें कि हम किस कैटेगरी में हैं। रब राजी रहे, दुनिया तो वैसे भी किसी की नहीं। शैतान ने 4 सिमतों का जिक्र किया है, आगे पीछे दाएं बाएं, मगर 2 रास्ते उसने खुले छोड़ दिए, ऊपर और नीचे का रास्ता। ऊपर है दुआ का रास्ता और नीचे है सजदे का रास्ता।
وہ ان دو راستوں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خواہشوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ انسان نے کہا، میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ تہلکا مچا دیتی ہیں فرش آسمانی پر محبت جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے بروں کے ہاتھ سے کھلواتی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے مگر اللہ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ معجزوں کی انتہا کر دے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ پریشان ہو تو سر مت پکڑو، سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اپنے رب سے مانگا کرو کیونکہ وہ نہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں کہ اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ شدت درد میں ہونٹوں پہ دعا کا ہونا ثابت، اس سے بھی تو ہوتا ہے رب کا ہونا۔ الحمدللہ کہیے اور یاد رکھیے آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کیوں میں امید کا دامن چھوڑوں، معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ نمبر 1، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو۔ نمبر 2، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ نمبر 3،
तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। फायदा अल्लाह ताला की तरफ से है और नुकसान इंसान की अपने ही बदआमाली की वजह से होता है। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसमें ये 3 निशानियां जाहिर हो जाती हैं। नंबर 1, ऐसा शख्स अपने रवैये में नरम और दूसरों के लिए मददगार बन जाता है। उसकी आजिज़ी देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आते हैं और वो दूसरों के दिलों में मोहब्बत पैदा कर लेता है। नंबर 2, सब्र और शुक्रगुजारी। अल्लाह का पसंदीदा बंदा मुश्किलात में सब्र करता है और नेमतों पर शुक्र अदा करता है। वो अपनी जिंदगी के हर हाल में अल्लाह की रजा को कबूल करता है। नंबर 3, अल्लाह की याद और इबादत से मोहब्बत। ऐसा शख्स इबादात में सुकून पाता है और हर वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ रहता है। नमाज, दुआ और जिक्र उसके दिल को इत्मीनान बख्शते हैं। जब अल्लाह किसी को पसंद करता है तो उसकी ये 3 परेशानियां बढ़ा देता है। नंबर 1, सब्र की आजमाइश। अल्लाह पसंदीदा बंदे को मुश्किलात और आजमाइशों में डालता है ताकि वो सब्र का मुजाहिरा करे। ये आजमाइश उसके ईमान को मजीद मजबूत और दिल को अल्लाह के करीब कर देती है। नंबर 2, अल्लाह मुश्किलात के जरिए बंदे के गुनाहों को मिटा देता है और उसकी रूह को पाक कर देता है। ये परेशानियां दर हकीकत अल्लाह की मोहब्बत और बख्शिश की अलामत होती है। नंबर 3, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे की आजमाइश। अल्लाह चाहता है कि बंदा हर हाल में उसी पर भरोसा करे। मुश्किलात उस ताल्लुक को मजीद गहरा करती हैं और बंदे को अपने रब के करीब ले आती हैं। 3 नेकियां जिनको करने से क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होगा। नंबर 1, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। नंबर 2, दिल ना चाहते हुए भी माफ करना। नंबर 3, किसी के गुनाह का पर्दा रखना। जिसने नमाज को थाम लिया उसने कामयाबी को थाम लिया। और जब अल्लाह की मदद तुम्हारे लिए आएगी तब तुम्हारे आंसू, तुम्हारा तड़पना ऐसे खुशियों में बदलता नजर आएगा कि तुम हैरान रह जाओगे। ये एहसास भी बड़ा सुकून देता है कि कोई जाने या ना जाने अल्लाह तो जानता है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो कि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ बुलाते हैं। मोहब्बत जब अल्लाह से हो जाती है तो मुलाकात की तड़प फजर से शुरू होती है और तहज्जुद पर खत्म होती है। कभी ना उम्मीद ना होना, मेरा रब है ना, वो कुन कहेगा तो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। और दुआ के बाद अगला मकाम सब्र का होता है। वो टूटने नहीं देगा सब्र का सिलसिला। वो कुन फरमाएगा और मौजज़ा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने जो कुछ तेरा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तू उस पर राजी रहेगा तो गोया तू सबसे ज्यादा मालदार शख्स होगा। कबूलियत का पहला कदम कामिल यकीन है। सब्र करो, अल्लाह आपके दिल की सुनता है। आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो।